আমি সমতুল নস্কর আর আপনারা দেখছেন নবরূপে সংবাদ। আজকের খবর, নেহেরু যুব কেন্দ্র বারুইপুর পরিচালিত বজবজ 2 ব্লকের ডোয়ারিয়া অঞ্চলে চলছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই অভিযানে উপস্থিত আছেন মাননীয় শ্রী বীরেন্দ্র সিং বোক, ডেপুটি ডাইরেক্টর দিল্লি, এবং উপস্থিত আছেন মাননীয়া নন্দিতা ভট্টাচার্য, স্টেট ডাইরেক্টর পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং আছেন অন্যান্য এনওয়াইকে স্টাফ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন ডাক্তার রজত শুভ্র নস্কর, ডেপুটি ডাইরেক্টর ওএসডি এনওয়াইকে বারুইপুর। চলুন এখন আমরা দেখে নেব এই স্বচ্ছ ভারতের কিছু অংশ। সবাই হাততালি দাও। অনিল বাবু আমাদের বীরেন্দ্র সিং বোকেন মহাশয়কে শালপুরি সমৃদ্ধ করলেন। পরবর্তী হেল্পিং ছাড়া, হেল্প বা কোঅপারেশন ছাড়া ওই পদে যেতে পারতেন না। সেই জন্য মিসেস সিং ব্রোকেনকে আমি এই সদরে আমি জ্যোতিকা, তুমি ম্যামকে একটু নিয়ে এসো। আমি ম্যামকে এই ডায়াসে একটু ডাকছি। প্লিজ ম্যাম, প্লিজ কাম। কারণ এই মানুষটি ছাড়া আগের ওই র্যাঙ্কে ডেপুটি ডাইরেক্টরে আসতে পারতেন না, এনার পুরো কোঅপারেশন ছাড়া। ওনাকেও আমরা একটি আমি রিমি না দেবকুমার, তুমি দাও। আমাদের দেবকুমার চ্যাটার্জি আমার সহকর্মী এই একটি শাল দিয়ে ওনাকে পুরো ভারত মাতাকে পুরো মানে ওনাকে কি বলবো মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বরণ করে নিলেন। থ্যাংক ইউ। পরবর্তী আমরা বরণের পালা। সেই মানুষটি খুবই আমাদের কাছের মানুষ। উনি একটা জোনাল ডাইরেক্টর হিসেবে আমাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই, কোনো তফাৎ নেই। উনি আমাদের সঙ্গে একই সঙ্গে সমযোগী মানসিকতা, সমমনোভাবাপন্ন। সেই মানুষটাকেও আমরা আজকে তুমি তৃপ্তি এসো, নতুন নিযুক্ত তুমি এনআইভিএস, তোমাকে এই শাড়িটা দিয়ে নাও খাইও। ম্যামকে অন্তরে এটাকে বরণ করে নিচ্ছি। ভালো করে দাও। একটু ফিজিক্যালি ওটাকে ভেরিফাই করে যাবেন। আজকে সেই প্রধান সাহেবকে আমরা অন্তরে হৃদয় দাও। হলো ভাইয়া দেরি কেন, হবে। আমি একে জ্যোতিকাকে দিয়ে বলবো আমাদের প্রধান সাহেবকে অন্তরে হৃদয় বরণ করে নেওয়ার জন্য। পরবর্তী আমার নাম ডক্টর রজত শুভ্র নস্কর। আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওনাকে অন্তরে বরণ করে নিলাম। পরবর্তী আমি বরণ করে নিই। আমি দাদা বলে ডাকি, ও আমাকে রজত দাদা বলে, কিন্তু মানুষটাকে আমরা কি করব, আমাদের মধ্যে এই এসব এই স্মৃতি এই ওদিকে ক্যামেরার দিকে তাকাও, পুরো খোলো। প্রত্যেকে আমরা অন্তর হৃদয় বরণ করে নিচ্ছি। দেবানন্দ চৌধুরী মহাশয়, এপিএস পরবর্তী আমরা বরণ করে আমি বরণ করে নেব। और वो है स्वच्छ भारत। एक विशेष अभियान क्लीन इंडिया नाम से कैंपेन शुरू किया गया है भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के तहत। नेहरू युवा केंद्र संगठन को पूरे देश में उसको संचालित करने की, और उसको संचालित नहीं बल्कि उसमें विशेष और बड़ी उपलब्धि की जिम्मेदारी के साथ उस कार्यक्रम को भेजा गया है गांव-गांव तक। 744 गाँव में वो कार्यक्रम हो रहा है, हर जिले में वो कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम के तहत कुछ टारगेट जरूर निश्चित किया गया है, और मेन जो उद्देश्य है वो है, अभी जो कंपोनेंट हमने लिया है वो लिया है इसमें वेस्ट प्लास्टिक कलेक्शन, और साथ में कलेक्शन ही नहीं करना है, उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है। उसका डिस्पोजल प्रॉपरली हो, वो पड़ा ना रह जाए ऐसे ही, क्योंकि जो पड़ा हुआ पहले से उसको हम विशेष अभियान के तहत इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के साथ मिलकर के ना
ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर के ना, तमाम ऐसी संस्थाओं सहयोगियों के साथ मिलकर के ना जो स्वच्छता की बात को समझते हैं, स्वच्छता के महत्व को समझते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय विषय रहा है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया। उसके अलग अलग महत्वपूर्ण कई बिंदुओं को छुआ गया है। कहीं हमने झाड़ू लगा के आसपास की गंदगी को साफ किया, कहीं हमने दूसरे तरीके से सफाई की बात की है, और अभी विशेष तौर पर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समस्या हमारे यहाँ बन गई है। उससे बहुत तरह की समस्याएं शारीरिक रूप से भी हमें झेलनी पड़ रही है। हमारे वातावरण में बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो गई है। डॉक्टर साहब ने अभी अभी बहुत गहराई से, बहुत डिटेल में आपको बताया किस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, किस तरह से जमीन प्रदूषित हो रही है, किस तरह से पानी प्रदूषित हो रहा है, और सबसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जीवन को जो खतरा होता है तो निश्चित तौर पर चाहे कोई भी जीव हो, आपने छोटे छोटे किसी जीव को देखा होगा, उसके जीवन पर जो खतरा आता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वो भी अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। अगर हम लोगों को ये लगता है कि इस जीवन में कोई खतरनाक ऐसा पहलू आ गया है, कोई खतरा हमें आ गया है, तो निश्चित तौर पर हम सबको तो बहुत बड़े स्तर पर सजग और जागरूक होना है, और इसके साथ साथ उस समस्या को दूर करने के लिए पहल ही नहीं बल्कि हर तरह से प्रयास करना है, उसमें जी जान से जुड़ करके ना अपने योगदान करना है। उसी सब के लिए ये कार्यक्रम जो चलाएगा उसमें जन जन का सहयोग, ये कार्यक्रम जिसको एक स्लोगन दिया गया है, क्या दिया गया है, जन सहभागिता से जन भागीदारी से जन सहभागिता से जन भागीदारी का कार्यक्रम बनाना है इसको। तो सबके सहयोग से, चाहे कोई भी है, खासकर दो ऐसे मानव संसाधन के वर्ग हैं जिनको हम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं शक्तिशाली नहीं मानते। एक वो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और एक वो जो बुजुर्ग हो गए। निश्चित तौर पर उनको हम बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं या बहुत ज्यादा शामिल नहीं करते हैं ऐसे सामाजिक अभियानों में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा वर्ग हमारे बीच में, हमारे देश में है, जिसको हमेशा बार बार आह्वान किया जाता है कि आपको करना है जो कुछ करना है, आपके कंधे पर देश का भार है, आपके कंधे पर या आपके योगदान पर देश का भविष्य टिका हुआ है। वो वर्ग कौन सा है? युवा वर्ग। जो आप सब बच्चे हमारे बीच में यहाँ पर खड़े हैं, ये बच्चियाँ जो कला मंडल की सदस्य हैं या कलाकार हैं, बहुत से बच्चे जो वॉलंटियर, एनवाईवी वॉलंटियर, हमारे यूथ क्लब्स के वॉलंटियर, और तमाम वो सामाजिक सहयोगी के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए वो लोग, उन सब का आह्वान, और उसमें खासकर जो युवा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं 15 से 29 साल या उसके आसपास, कहीं ना कहीं जिनमें शारीरिक और बौद्धिक क्षमता सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात, आज जो विश्व में हम लोग जनसंख्या के दूसरे पायदान पर हैं चाइना के बाद, लेकिन इसी जनसंख्या में एक भाग हम ढूंढते हैं, पहलू ढूंढते हैं, तो सकारात्मक पहलू जो है वो क्या है कि हम लोग विश्व में युवा जनसंख्या के साथ 1 नंबर पर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। निश्चित तौर पर भविष्य हमारा सुरक्षित हो सकता है, सुनहरा हो सकता है। बस इतनी करने की जरूरत है कि युवा शक्ति को हमें जागरूक करना है, प्रेरित करना है, इसको संगठित करना है और इसको काबिल बनाना है। ये बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ कर रहा है अभी भी। तो निश्चित तौर पर ये जो अभियान, ये जो आह्वान सरकार के तौर पर किए जाए, सामाजिक तौर पर किए जाए, तो तभी सफल ज्यादा हो सकते हैं जब सब लोग जुड़ेंगे, और खासकर युवाओं पर। नेहरू युवा केंद्र तो बना ही युवाओं के लिए है, युवाओं के द्वारा ही यहाँ सब काम होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग युवा साथी मिलकर के ना नेहरू युवा केंद्र ने जो जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्लास्टिक कलेक्शन का जो टारगेट हमने अचीव वो किया, अलग सेट किया है, उसको अचीव करने में आप लोग पूरा योगदान देंगे। बहुत छोटा सा टारगेट जिले के लिए है कि 11,000 किलो हमें पूरे जिले में प्लास्टिक वेस्ट अभी 31 तारीख तक कलेक्ट करना है और उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, दिखाई देता है, सुनने में जरूर बड़ा आता है, लेकिन जो एक करके हम लोग कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर वो पूरा होने में कोई दो राय भी नहीं है और कोई शंका भी नहीं है हमें। आप सब लोग मिलकर के ना हर जिले में डॉक्टर साहब जैसे काबिल ऑफिसर है, मैडम नंदिता राय जी जैसे काबिल सहयोग करने वाले, गाइड करने वाले ऑफिसर हमारे यहाँ पर हैं,
और सभी लोग मिलकर के इस अभियान को पूरा करेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, बल्कि इससे ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे। आप सब लोग तो दो काम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी अभी एक दो आपके इस पूरे कार्यक्रम का मैंने देखा यहाँ पर कि बहुत जरूरी जहाँ पर अभी हमारे देश में विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर, विषयों पर, खासकर सामाजिक मुद्दों को लेकर के ना जहाँ जागरूकता की जरूरत है, जन जागरण की अभियान चलाने की जरूरत है, उसको भी आप भलीभांति यहाँ पर कर रहे हैं। ये सब बच्चियां अभी मिलकर के ना मैडम की टीम जो है जागरूकता का कार्यक्रम कर रही थी, आईईसी, जिसके डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे। बहुत जरूरी है अभी भी हमारे देश में कि इस तरह के आह्वान अभी किए जाए, इस तरह के मूवमेंट चलाए जाए, वो भी आप कर रहे हो। और साथ में दूसरा कोई बच्चे आपके साथ मिल करके ना दूसरा जो प्रैक्टिकल काम है इस अभियान का, उसको भी कर रहे हैं, वो है वेस्ट कलेक्शन का। अभी आपने सबने मिल करके ना, मैंने देखा यहाँ पर कई बैग्स जो है वो इकट्ठा कर दिया, भर दिया है। और इसी तरह से गांव-गांव में ये बैग्स, शहर-शहर में ये बैग भरे जा रहे हैं और प्लास्टिक इकट्ठा करके ना उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा रहा है, जहाँ प्रॉपर उसके लिए प्लेस या जो एजेंसी निश्चित की गई है वहाँ पर उसको दिया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जिले में डॉक्टर साहब के नेतृत्व में 11,000 किलो नहीं, मुझे तो 20 और 22 से भी ऊपर पहुँचने की, 20-22 हजार केजी से भी ऊपर पहुँचने की उम्मीद है। और ये जिला देश में 1 नंबर पर आए और मुझे बहुत खुशी होगी कि इस जिले के बच्चे, इस जिले के अधिकारी दिल्ली में आकर के ना जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमने विचार किया है कि जो अच्छा काम करेगा और बेहतर, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करेगा, उनको दिल्ली बुलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली आने का मौका उनको मिलेगा। राष्ट्रपति जी से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो सकती है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जी से, हमारे वाइस प्रेसिडेंट से आपसे मिलने की आपको एक अवसर मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको आह्वान भी करूंगा, आपका निवेदन भी करूंगा कि इसी कार्यक्रम में नहीं बल्कि इसी तरह के अनेक कार्यक्रमों आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पुरस्कार की बात आपके लिए हो रही है, सम्मान की बात आपके लिए हो रही है, सर्टिफिकेट के द्वारा मीडिया में आपको सम्मान या कहीं ना कहीं आपको एक नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी। दूसरी जगह आपको, सब जगह आपके गांव में, आपके उसमें आपको पहचान मिलेगी और पहचान केवल काम करने से मिलती है, हम सबको ये पता होगा। तो मैं आप सबसे तो निवेदन करूंगा कि इस काम में लगातार अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको कंटिन्यू करें। ये कार्यक्रम विधिवत 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या स्वच्छता आगे जरूरी नहीं होगी क्या? यस सर। तो इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन और करूंगा कि ये कार्यक्रम तो कार्यक्रम होते हैं, एक निर्धारित अवधि के कार्यक्रम होते हैं, शुरू होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। गंदगी 1 तारीख के बाद भी होगी, 31 के बाद भी, वो भी हमें देखना है, वो भी उठाना है। ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने कहा 31 तारीख तक था प्रोग्राम, उसके बाद कौन देखेगा, ये नहीं होगा। उसके बाद जैसा कि ये कार्यक्रम है, ये आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहिए। ये मूवमेंट, ये कार्यक्रम, ये गतिविधि पकड़ ली चाहिए, इसको आगे तो कंटिन्यू करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के ना डुमरिया गाँव में, और आप सबने बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया, आपने अपनी प्रस्तुति दिखाई, इन बच्चों ने इतनी अच्छी कला ये लेकर घूम रहे हैं। कहीं गंगा माँ की बात हुई यहाँ पर, कहीं देशभक्तिपूर्ण दूसरे कार्यक्रम की बात हुई। इनका ड्रेसअप होना ही अपने आप में देशभक्ति का परिचय है क्या? तो हमारे यहाँ पर कई चीजें जो है बाहर से भी पता लग जाती है, जब हम देखते हैं कि उसकी मूल भावना क्या होगी, ये संगठन क्या करता होगा, ये ग्रुप क्या करता होगा, इसका किस तरह की गतिविधियाँ होगी, और यहाँ से पता लग जाता है। मैडम स्टेट राइटर साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपके मैडम बहुत अच्छी टीम, डॉक्टर साहब जैसे, भाई चटर्जी जैसे और सब लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी टीम, बाकी सब सहयोगी हैं यहाँ पर। तो आपको निश्चित तौर पर चिंता की मुझे लगता नहीं जरूरत होगी कि आपका लक्ष्य स्टेट का जो है वो पूरा हो जाएगा 31 तारीख तक आराम से, और उससे ज़्यादा ही आप लोग कर पाएंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबको, मंडल साहब को, प्रधान जी को, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के मुद्दे साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर के ना, क्योंकि आपको बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। इस कार्यक्रम से मैं आपको बताना चाहूँ, लगातार इतना गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को नेहरू केंद्र चलाया है, मंत्री लगातार इसकी रिव्यू कर रहे हैं, लगातार वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जाकर के कार्यक्रमों में आप बच्चों के साथ शामिल हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कराते हैं, प्लास्टिक। हमारी सेक्रेटरी मैडम लगातार संपर्क में रहती है, रोजाना हम सबसे बातचीत करती हैं, प्रोग्रेस रिव्यू करती हैं।
कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर क्या प्रोग्रेस हुई है। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमारे डीजी साहब, सब लोग लगातार मंत्रालय में, नेहरू सेक्टर में, हमारे प्रोग्राम से देखने वाले जो डायरेक्टर साहब हैं, वो लोग ईडी और सब लोग लगातार टच में हैं, लगातार संपर्क में, सब पूरे देश में, सब अपने साथियों के साथ। और आपकी हौसला अफजाई हर जगह हो रही है। आपके द्वारा किया गया काम, जो आज काम हो रहा है, वो कल ही दिल्ली पहुंच जाता है, बल्कि शाम को पहुंच जाता है। तो इस बात में भी आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि आपका किया गया प्रयास दिल्ली तक सराहा जा रहा है, और दिल्ली आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। দর্শকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, আমাদের এই চ্যানেলটি দেখুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন পুশ করুন, লাইক দিন। নমস্কার।